Hello students, welcome you again to the class of chemistry. So here we are going to start metals and non-metals. So in this chapter we will study about metals, what are metals, since we have studied in the previous class about elements that are pure substances and also about the classification of elements. So again we will continue about the classification of elements in which we are going to start that metals and non-metals, and we will study about the properties of metals and non-metal, that will be physical property as well as chemical property. So let us start from the फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से स्टार्ट करते हैं. तो देखते हैं मेटल्स जो होते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं. तो बहुत सी प्रॉपर्टी मेटल के तो ऐसे हैं जो आप जानते हैं आपके आसपास होते हैं. मेटल्स आपने बहुत देखा होगा, आयरन देखा हुआ है, सिल्वर देखा हुआ है, गोल्ड देखा हुआ है. So different metals have different property and that property you are very known about. And metal की property के according ही metal का use होता है. तो जैसी metal की property होती है वैसे ही देखेंगे कि आप हमारे समय में हमारे चारों तरफ metal का use होता रहता है. तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले वो properties क्या क्या हैं जिसके बेसिस पे metals का use भी करते हैं और वो important भी होता है property जो metals के होते हैं. तो सबसे पहले हम property देखेंगे physical property में luster. So what do you mean by luster? Luster is actually the shining appearance, shining surface of the metal. So metals have shining surface and that surface is known as metallic luster. तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि that means metals have metallic luster. That means shining surface. Like you have seen gold shine करता है तो सभी लोग जो है gold का ornament use करते हैं. इसी तरीके से आपका आयरन का एक अलग लस्टर है. आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे मेटल हैं कि आपको सामने लस्टर उसका दिखेगा नहीं, चमकता हुआ नहीं दिखेगा. बट अगर आप सैंड पेपर लीजिए और सैंड पेपर लेने के बाद उसको रब करिए, यू विल सी दैट द सरफेस शाइनिंग सरफेस विल अपीयर. तो दैट मींस द मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस एंड दैट इज नोन एज लस्टर. नेक्स्ट देखेंगे हमारा है हार्डनेस. हार्डनेस हम क्या जानेंगे, हमें पता है कि मेटल्स जो होते हैं maximally you will see whatever the metals you are watching around us, you can see that they are generally hard. So metals are generally hard, but there are some exceptions also. What are the exceptions? Sodium, potassium, lithium, these are exceptions. We are studying 3.1.1 from NCERT, and here the exception is given sodium, potassium and lithium. तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया एंड लिथियम, these are very soft metal, they are not hard, they are so soft that they can be cut with knife. उसको हम नाइफ से भी कट करेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं. कौन हमारे पास, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम. ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं. चलिए अगला देखते हैं. अगला हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, स्टेट. स्टेट मींस सॉलिड स्टेट में पाया जाता है कि लिक्विड स्टेट में. तो वी कैन सी दैट मोस्टली वी आर सीइंग all the metals in solid state. So you will see that metals, most of the metals are found in solid state, but there is a metal which is found in the liquid state at room temperature, and that is mercury. You have seen mercury which is used in thermometer. In thermometer mercury is used, and the mercury is a metal. So mercury is a metal which is exception, which is found in liquid state at room temperature. Clear? So mercury is found in the liquid state at room temperature or normal temperature, you can say. After that, next property we will see that malleability. So what is malleability? Malleability is, that means the metal can be, or the substance can be beaten into thin sheet. So malleability is actually the properties of metal due to which they can be beaten into thin sheet. अगर उसको हैमर से आप हिट करें तो what will happen, due to heating or due to the beating, that metal can be converted into thin sheet. And another property of these metals are beaten into thin sheet and they can be converted into the different shapes. क्लियर? इसी की वजह से अलग अलग शेप के आपके बर्तन बन पाते हैं, क्योंकि हम जो है मेटल्स को बीट करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब इसमें देखेंगे अलग अलग मेटल का अलग अलग क्या होगी, हमारे पास मेलेबिलिटी होगी. कुछ ज्यादा मेलेबल होंगे,
ज्यादा जो है थिन शीट कन्वर्ट हो सकते हैं, कुछ कम मेलेबल होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल्स। कौन कौन है? गोल्ड एंड सिल्वर, ये जो है बहुत ज्यादा मेलेबल है। ये गोल्ड की मैं बात बता दूं, अभी आपका आएगा एक्सपेरिमेंट आएगा, गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट आएगा, वहां पे आप देखेंगे रदरफोर्ड का भी एक्सपेरिमेंट आएगा। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे केमिस्ट्री में ही कि उन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज किया था। we'll see in the next chapter, that is not next chapter, that is fourth chapter. So in that chapter we will see that gold has been used, उसमें इसी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, अवेलेबिलिटी का, क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसा है जिसको इतना थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया गया था कि वो नियरली 10 एटम के बराबर उसकी थिकनेस हो गई थी। 10 to 100 और 1000 एटम के बराबर उसकी थिकनेस हो गई थी। तो दैट मींस ये जो हमारा है गोल्ड एंड सिल्वर, दीज आर मोस्ट मेलेबल, दैट इज इनका बहुत पतला शीट कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं डक्टिलिटी। सो डक्टिलिटी क्या है? इट इज आल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ड्यू टू व्हिच दैट मेटल कैन बी ड्रॉन इन थिन वायर। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल क्या होते हैं, उनको थिन वायर में, यानी कि एक पतले वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो खींचेंगे तो वो वायर में, पतले वायर में कन्वर्ट होते जाएंगे। अब देखिए, अगर आप एग्जांपल देखें, सपोज करिए आप 1 ग्राम ऑफ गोल्ड ले लिए। गोल्ड जो है आपका बहुत ज्यादा डक्टाइल है। 1 ग्राम अगर आप गोल्ड लेते हैं एंड दैट 1 ग्राम गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ थिन वायर एंड द लेंथ ऑफ वायर कैन बी approximately equal to the about 2 kilometer length. So we can draw a wire of 2 kilometer by only 1 gram of gold. So gold is very much ductile. Clear? Now come to the next, conductor of heat and electricity. So we can see here metals are good conductor of heat and electricity. जो metals होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं heat and electricity के। So here we will see that silver and copper are best conductor. तो जो बेस्ट कंडक्टर है वो कौन है हमारे पास? सिल्वर एंड कॉपर। These are best conductor of electricity and also heat also, but for the making of utensils like बर्तन जो आपका बनाया जाता है खाने के लिए, खाना पकाने के लिए, तो उनमें कंडीशन क्या होता है कि वो अच्छे से हीट को क्या करें, ट्रांसफर कर सकें। जिस भी पॉट है, जिसका पॉट बना है, तो उस मेटल का वर्क क्या है कि वो हीट को अच्छे से कंडक्ट करे, जिससे कि हमारे उस पॉट के अंदर जो भी चीजें रखी हुई हैं उसको हीट मिल सके अच्छे से। तो इसीलिए वहां पे हम यूटेंसिल्स यूज करते हैं जो अच्छे होते हैं कंडक्टर हीट के। अब उसमें आपका यूज होता है एल्यूमिनियम, कॉपर एंड ऑल्सो आयरन और स्टील। ठीक है, उसमें एल्यूमिनियम जो होता है काफी अच्छा कंडक्टर होता है, बट ड्यू टू रिएक्टिविटी ज्यादा अच्छा स्टील हम मानते हैं। तो इट डिपेंड्स व्हिच यूटेंसिल विल बी यूज्ड बाय अस, दैट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस वी आर गोइंग टू कुक इन दैट। सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कौन होगा? सिल्वर एंड कॉपर जो होंगे वो आपके बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे सिल्वर एंड कॉपर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड वी विल सी दैट देयर आर सम मेटल्स which are very poor conductor of electricity, and that are lead and mercury. So lead and mercury are very poor conductor of electricity. Clear? So this is all about the properties of metal. In the next section we will see about the properties of non-metals, and whenever we are studying about the properties of metals or non-metals, there are some exceptions also that are very much important. तो जो एक्सेप्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसी से आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये तो आपको पढ़ना है, या साथ में एक्सेप्शन जो होते हैं उस पे आपको बहुत ध्यान रखना है। सो वी विल अगेन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, थैंक यू।